Very good morning, everyone. Welcome you all in today's science class. I hope you all are fine and please follow the precautions to protect yourself from the COVID-19. Okay. So from Monday the school is going to open. From Monday your school is opening from 8 for 8th class. Okay. So everyone has to come and please make sure you are having sanitizer here. You are wearing mask. Okay. I can't wear mask now because I have to speak. If I wear mask, you will not be able to listen me. Okay, what I am speaking, you will not be able to understand. So first one thing I want to say, if any problem you are having anywhere, okay, अगर किसी को कोई भी problem है, you are having the number of your class in charge also. Okay, if any student is not aware about कि मैम who is the class in charge of mine, स्पेशली फॉर न्यू स्टूडेंट्स. ओके, अगर आप अवेयर नहीं है कि आपका इंचार्ज कौन है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर 9468077270. ओके, 9468077270. इट इज माई कॉन्टेक्ट नंबर. क्लियर? फर्स्ट वन थिंग बेटा, वेन एवर आई एम गिविंग वर्क, when I give work, the students are having confusion कि how it is to be done, how it is to be done. Okay, so I think there is no need to confuse anything. जैसा आप चाहें you can do. You can want to use black pen for the questions, you can use. If you want to use sketch pens in the drawing, in the diagrams, you may use. Sketch pens, I am not saying कि you have to use dark colors, because if you will use dark colors, it will give impression on the next page also. Okay, so please use light colors. And if you are having so much fond of colors using, you may use pencil colors. It will not harm the pages also. Okay, and please do the work regularly. Although I think I am not giving so much work also, please pay attention everyone towards your work that is to be completed. Okay, so as you know कि we are doing first chapter crop production and management. We are doing this chapter. Am I right? जितना भी हमने कोई पार्ट किया है, although we have done a very less part in this, I think you have noted down my number, everyone. My name is Miss Ajesh. Okay, so I request you all, please note it down, everyone, where you can see my number कि मैम का नंबर यहाँ पे है. I have this problem, I can contact to ma'am. Clear? So there are the 3 words in this chapter: crop, production and management. Crop, वैसे तो हम plants भी grow करते हैं. Yes, in our house garden, mostly we maintain a small garden. But can we say them crop? No, because crop हम grow करते हैं large amount में. We कैन नॉट से कि हमें वीट का 1 प्लांट लगाना है, हमें पैडी का 1 प्लांट लगाना है, नहीं ना, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लांट्स. क्रॉप में क्या आएंगे? मैनी प्लांट्स. व्हेन वी ग्रो मैनी प्लांट्स, ओके, एट अ लार्ज स्केल, इन लार्ज नंबर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रॉप. प्रोडक्शन, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने स्टेप्स यूज किए. ओके, अब प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? टू प्रोड्यूस समथिंग. क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने स्टेप यूज किए, दैट विल बी द अंडर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. वो किस में आएंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में. ओके, बिकॉज वी हैव यूज्ड मेनी स्टेप अंडर दिस पार्ट. किसके लिए? क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, क्लियर? अगर हमें कोई भी चीज बनानी है तो ये नहीं कि हम स्टार्टिंग में लास्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं. यस ना, हमें वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, देन वी आर गोइंग टू द लास्ट पॉइंट. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक. सपोज योर मदर इज प्रिपेयरिंग द फूड. जब मम्मी खाना बनाती है तो क्या करती है? फर्स्टली शी हैज टू कट द वेजिटेबल, क्लीन करती हैं, कट करती हैं, देन टू हैज टू प्रिपेयर द ingredients what she will use in the vegetable. Am I right? So same thing is here also. To produce the crop we have to follow certain steps.
ओके, अब हमने क्रॉप को रिड्यूस कर लिया बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स। अब उसको मैनेजमेंट कैसे करें, हाउ वी कैन मैनेज, मीन्स सर्टेन फैक्टर्स कैन बी देयर जो हमारी क्रॉप को हार्म करते हैं। कोई भी फैक्टर हो सकते हैं उसमें पेस्ट हो सकते हैं, वीड्स हो सकते हैं। ओके, सो उसको मैनेज कैसे करें, हाउ टू मैनेज, बिकॉज जो हमने क्रॉप रिड्यूस की we have to use for that our future also. Okay, because now many times nowadays you can see what is there, pandemic is there, so that for such kind of situations the crop means the grain which we have produced from the crop we can keep it safe for our future use. उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं जिससे हम क्रॉप जो हमने प्रोड्यूस की उसको मैनेज कर सकें। क्लियर, ये है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसके लिए हमने कौन से स्टेप्स यूज किए। फर्स्ट पॉइंट होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लिसन वन थिंग, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट चीज रेडी करनी पड़ती है। सपोज कि हमें खाना बनाना है तो पहले हमें वेजिटेबल देखनी है कि हमें क्या बनानी है, क्लीन करना है, कट करना है। ओके, कि खाने में क्या बनेगा, ये नहीं कि हाँ जस्ट वट एवर वी कैन प्रिपेयर, नो, वट एवर वी वॉन्ट टू ईट फर्स्टली वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमें उसको कैसे रेडी करना है। तो हमने क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए पहले क्या करना होगा, सोइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर इन द सेंस कि जो हमारी क्रॉप है वी कैन गेट अ गुड हार्वेस्ट। ओके, क्रॉप के लिए हमें गुड हार्वेस्ट, क्रॉप से हमें गुड हार्वेस्ट मिल सके उसके लिए हमें सोइल को प्रिपेयर करना है। ओके, प्रिपेयर करने का मीनिंग क्या है, टू टर्न एंड लूज द सॉइल। लूज मीन्स अगर सॉइल में हार्ड पार्ट है, हार्ड क्रम्स है, उनको ब्रेक कर देना प्लैंक की हेल्प से। ओके, प्लैंक क्या है, विच इज यूज इन द फील्ड बाय द फार्मर्स। ओके, ताकि जो रूट्स क्रॉप्स की डीप में जाएंगी वो अच्छे से ब्रीथ कर सके, सो दैट दे कैन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स। अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, these are known as the farmer friends. These points we have done yesterday also about the preparation of soil. Okay, so second step क्या है, second step is sowing. Okay, sowing the seeds. अब हमने soil को तो रेडी कर लिया, अब हमें उसमें seeds को ग्रो करना है। ओके, अब seeds how we can find कि the how which are the good quality seeds and which are the poor quality seeds. There is a difference between the good quality seeds, good quality or poor quality. Okay, so how we can differentiate between these, क्या कर सकते हैं इसके लिए। So we have to take some grains, some seeds in our hand, और उनको पानी में डिप कर दो। ओके, पानी लिया एक बीकर में, किसी कंटेनर में, वी हैव टू लीव ऑल द सीड्स इन दैट वाटर। ओके, देन व्हाट विल हैपन, जो गुड क्वालिटी सीड्स होंगे वो पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, एज वी नो कि जो चीज हैवी होगी वो नीचे पानी में बैठ जाती है, और जो पुअर क्वालिटी सीड्स होंगे दे विल कम ओवर द सरफेस, बिकॉज वो अंदर से खाली हो चुके हैं, अंदर से होलो है। ओके, गुड क्वालिटी सीड्स because they are not hollow from inside, they are heavy, they will settle down at the bottom of the water, और ये सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये एक वे है चेक करने का कि हमारे पास जो सीड्स हैं वो गुड क्वालिटी के हैं या पुअर क्वालिटी के हैं। ओके, अब सोइंग कैसे करें, देयर आर द फर्स्टली अर्लियर डेज इट वाज देयर दैट द पीपल, द फार्मर्स वर डूइंग दिस वर्क विद द हैंड। वो इस काम को अपने हैंड से करते थे।
but nowadays machines are there, seed drill is there. Okay, with the help of machine what is there, जो हम सीड्स ग्रो करते हैं उनके बीच में इक्वल स्पेस आएगा. Okay, if there is the equal space, then what will happen? They will get the proper nutrients, they will get the proper sunlight, proper air. अगर हम सीड्स की क्राउडिंग कर दें, okay, means if there is no space, if there is no space between the seeds, तो क्या होगा? They will fight for the nutrients, they will fight for the sunlight, there will be competition between them कि I will get air, I will get sunlight. So to avoid this, there should be the proper space maintained between the seeds which we are growing. Okay, उनके बीच में हमें प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना है, गैप मेंटेन करना है, ताकि जो उनकी नीड है प्रॉपर ग्रोथ के लिए वो उनको मिल सके. फाइन. सो नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग manure and fertilizers. Adding manure and fertilizers means manure तो we can prepare in the fields also. Okay, जो भी हमारे वेजिटेबल पील्स हैं, जो भी प्लांट्स का डेड और डिकेड मैटर है, उससे हम मैन्योर को रेडी कर सकते हैं. बट फर्टिलाइजर्स कैन बी डन रेडी इन ओनली इन द फैक्ट्रीज बाय द वर्कर्स. ओके, manure we can say it is natural, or fertilizer it is mostly made by the man in the factories, that is why it is you can say the artificial. Fertilizer होते हैं nutrient specific, like NPK, नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस. ओके, ये नेम है फर्टिलाइजर का. क्लियर? ये किस लिए हम यूज करते हैं? सो दैट वी कैन गेट द गुड क्रॉप. Okay, whenever we are just having flower pots, जब भी हमारे घर में pots हम use करते हैं तो what we are giving? Sometime your mother have you seen she is giving manure to the flowering plants या कोई और plants आपके घर में. Why? For the better growth, for the proper growth. That is why manure and fertilizers are being used. Okay, next step, irrigation. Irrigation means when we are providing water to the crops. Do you think so? Okay, without water we can live. Can you live without water? No, we cannot live without water. The water is to be given in the proper way to the crops. उनकी proper growth के लिए हर एक step का अपना work है. Okay, if we are skipping any step now, we cannot get a good harvest. अगर इनमें से हम कोई भी स्टेप को स्किप करते हैं कि छोड़ दे पॉइंट, लीव इट दिस स्टेप कि वी आर नॉट गिविंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, लीविंग दिस स्टेप, व्हाट इज द डिफरेंस कि हम गुड क्वालिटी यूज करें, पुअर क्वालिटी यूज करें? क्रॉप तो हमें यूज करनी है ना, हमें मिल रहा है हार्वेस्ट. जितनी हमारी क्रॉप अच्छी होगी उतना ही हमारा अच्छा हार्वेस्ट होगा, एंड द फार्मर्स ऑब्वियसली दे विल गेट द गुड अमाउंट ऑल्सो. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी आर मैनेजिंग दीज पॉइंट्स. क्लियर? ये फार्मर्स के हाथ में है कि वो सीड्स कैसे यूज करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर कैसे यूज करते हैं, और इरिगेशन. देयर आर द टू मेथड्स, ऑल्दो मैनी आर देयर. इन अर्लियर टाइम द मैनी पॉइंट्स वर देयर कि they are giving water from the wells, from the red system. Nowadays sprinkler system is there, drip irrigation is there. Sprinkler system में क्या होता है? You have seen I think in your school also. जब भी आप किसी पार्क में जाते हो, स्कूल में जाते हो, यू कैन सी द स्प्रिंकलर सिस्टम. मीन्स वाटर फॉर द वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में. और ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ये वाटर प्रोवाइड करेगा एट द बेस ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप्स. ड्रिप मीन्स ड्रॉप की फॉर्म में वाटर जाएगा क्रॉप्स की रूट्स तक. ओके, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम. बेस्ट है क्योंकि इसमें वाटर का कोई लॉस नहीं होता, वाटर वेस्ट नहीं होता है इसमें. एंड स्प्रिंकलर सिस्टम इट विल जस्ट मूव इन द सर्कुलर वे ऑल्सो. तो जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ भी वाटर जाएगा. ओके, सो ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट. क्लियर? ओके,
नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या है? वो प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए और क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। ओके, द क्रॉप्स विच आर द प्लांट्स, सॉरी प्लांट्स नॉट क्रॉप्स, विच आर ग्रोइंग नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। ओके, और जब ये क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं तो ऑब्वियसली ये भी कंपटीशन में आएंगे सीड्स के साथ, क्रॉप के साथ, कि हमें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें भी एयर चाहिए, हमें भी सनलाइट चाहिए। सो दीज कैन हार्म आवर क्रॉप्स। वीड्स हमारी क्रॉप को हार्म कर सकते हैं। सो इनसे अपने क्रॉप को बचाने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू रिमूव दिस विद द हैंड्स। ओके, हैंड से रिमूव करना है। टिलिंग बिफोर प्रिपरेशन ऑफ, जब सॉइल को रेडी करते हैं तब उसको रिमूव कर, सम टाइम इट इज ऑल्सो देयर, देन ऑल्सो उनको तब रिमूव कर सकते हैं। ओके, there are many equipments, tools used by the farmers by which they can be removed. Okay, the chemical also, weedicides. Okay, means weedicide means the use of chemicals to remove the weeds. Clear? So next step है harvesting, sorry sixth step है harvesting. हार्वेस्टिंग मीन्स वी हैव फॉलोड दीज स्टेप्स, हमने वीड्स को रिमूव कर दिया, अब आ गया उसको हार्वेस्ट करने का टाइम। ओके, जब हमारी क्रॉप बिल्कुल रेडी हो जाती है तो हम उसको कट कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द कंबाइन ऑल्सो, थ्रेशर ऑल्सो। अर्लियर डेज इट वॉज देयर कि मैनी पीपल डूइंग दिस वर्क, बट नाउ थ्रेशर, कंबाइन, दे रिड्यूस दिस लेबर। ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज द लेबर कैन बी रिड्यूस्ड। And the last step is storage. Okay, storage means जो हमने इतने स्टेप से क्या मिला है, हमें जो क्रॉप मिली है उसको हम स्टोर कैसे करें, कहाँ पे करें। ओके, जो स्टोरेज है, यू हैव सीन इन योर हाउसेज ऑल्सो, द बिग टैंक्स आर यूज्ड बाय द पेरेंट्स। उनमें वो नीम लीव्स डालते हैं, कैम्फर बॉल्स डालते हैं, ओके, मैच स्टिक्स डाल देते हैं। फर्स्ट थिंग, जो हम ग्रेन को स्टोर करेंगे वो कम्प्लीटली ड्राई हो, उसमें वेटनेस ना हो, मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर हुआ तो इट इज़ नॉट गुड फॉर स्टोरेज पार्ट। ओके, सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आई थिंक पॉइंट्स आर क्लियर। पॉइंट्स मोर क्लियर होंगे जब हम बुक की रीडिंग करेंगे। ओके, so thank you everyone. So these are the basic agricultural practices. कोई किसी को डाउट है, you may ask in the comment section also, and please watch every videos carefully sent by your teachers. Okay, so thank you everyone. We will do these in the from the reading part also. For reading I will send more videos to you. Clear? When I send the videos, please keep your books open everyone. Thank you.